آپ کے سامنے عبرانیوں کے نام خط کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت سماعت فرمائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں، کچھ تلاوت جو ہے اس کے حوالے سے تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بڑے ہی مضبوط ہیں، بڑے ہی ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مضبوط جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا استحقاق دکھایا کہ ہم جو ہے آپ کو آزاد کرنے کے لیے آئے، لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا گیا ان مضبوطوں کی وہ کثرت، وہ ماننے کی علویت ان کے اندر جو تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ درائی ختم ہوتی گئی، اور وہ دنیا کے ان مضبوطوں کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کم ہوتے گئے۔ لیکن ایک ہی دنیا میں ایک ہستی آئی جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے لوگوں کو آزاد کروں، اور وہ ہستی جو ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ دنیا جہان کے لیے ایک ایسی ہستی بن گئی کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اور آج دنیا میں جس کسی کے بھی لبوں میں نام آتا ہے وہ زندگی ایسے لگتی ہے کہ وہ آزاد کی ہوئی ہے، اور وہ زندگی کا نام یسوع المسیح ہے۔ زندگی کا کیا نام ہے جی؟ یسوع المسیح، جو اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے۔ آج صبح ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا اور اس دنیا میں اس کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ عالم کہتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا نے خاص طور پر اپنے پرگندہ فرزندوں کو جمع کر لیا، اپنے پرگندہ لوگوں کو یا فرزندوں کو جمع کر لیا۔ فرزندوں سے مراد ہے کہ جو اس کے پیارے تھے، جو اس کے ماننے والے تھے۔ یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر ان کو کیا کیا؟ اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کرنے سے یہ مراد تھی کہ ان کو یقین دہانی دلائی جائے کہ میں کسی اور قوم کے لیے نہیں یا کسی مبعوث کے لیے نہیں، بلکہ میں پوری دنیا کو آزاد کرنے کے لیے آیا۔ پوری دنیا میری فرزند ہے، اور پوری دنیا کو میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، تمہارے لیے میرا اس دنیا میں جنم ہوا۔ اس کرسمس کے موقع پر اصل میں مقصد ہی یسوع مسیح کا یہی ہے۔ کرسمس پر اس کا پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں اس دنیا میں لینے کے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کیا کروں؟ آزاد کروں۔ کچھ لوگوں کو کیا کروں جی؟ آزاد کروں۔ ایک مصنف کہتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ تھا کہ دنیا کو مسیح دے اور اپنے فرزندوں کے لیے نجات کا کام کرے۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ دنیا کو مسیح دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر خاص طور پر مصنف کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کو مسیح کی ضرورت تھی، اس لیے دنیا کو ضرورت تھی تو باپ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ دے دیا، تاکہ اپنے لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ آج بھی موجودہ دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو بے مقصد نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، خدا ضرورتوں کا خدا ہے، خواہشوں کا نہیں۔ خدا کیا ہے؟ ضرورتوں کا خدا ہے، خواہشوں کا نہیں، کیونکہ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی رہتی ہے، ایک پوری ہوئی تو دوسری حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن خدا ضرورتوں کا خدا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے
मसीह को दुनिया को दे दिया ताकि अपने लोगों के लिए वो निजात का वसीला बन सके। इसलिए वो अपने लोगों के लिए निजात का वसीला बन सके। वरना उसे क्या जरूरत थी कि वो दुनिया में आता और अपने लोगों के लिए इतने बड़े काम करता। सिर्फ एक कि अपने मानने वालों को, अपने फर्जंदों को इकट्ठा करे और इस बात की याद दहानी करा सके कि मैं दुनिया में आया हूं और इसलिए आया हूं कि जो मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और जो जिंदगी पाए वो कसरत की जिंदगी पाए। ये उसका खास मकसद था। इसलिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया, उसका ये मकसद था। आलिम कहते हैं कि उसका मकसद मरना था। उसका मकसद क्या था? मरना था। इसलिए उसे इंसान की तरह पैदा होना पड़ा। क्रिसमस का खास मकसद यही था। क्रिसमस का खास मकसद क्या था? कि वो मरे। क्रिसमस पर पैदा होने का उसका खास मकसद यह था कि वो मरे। इसलिए वो इंसान के रूप में पैदा हुआ। जिस तरह से उसका जलाली बदन था वो इंसानी रूप लेकर नहीं आ सकता था, इसलिए वो इंसानी रूप धार कर इस जमीन पर आया ताकि अपने लोगों के अंदर रहकर और काबिलियत का जामा पहनकर उनको इस बात की याद दहानी कराकर उनको ये याद दिला सके कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि कुछ लोगों को आजाद करूं और गुनाहगारों को उनके गुनाहों से निजात दे सकूं। आज भी उसका मकसद यही है कि अगर कल 2000 साल पहले वो बनी इस्राएल कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज से 2000 साल पहले मरा, तो आज भी उसका मकसद एक ही है कि जो उसके मानने वाले लोग हैं अगर वो उनके लिए उस दिन मरा था तो उसके लोग उसके लिए मरे, उसके लिए अपनी जान। अगर उसने अपने फर्जंदों को इकट्ठा किया था तो आज हर एक इंसान की ये जरूरत है कि वो अपने आसपास के जितने उसके बेटे यीशु मसीह को मानने वाले हैं वो इकट्ठा खुशखबरी दे कि क्रिसमस का असल में मकसद क्या है कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि पहचान दे सके कि मैं तुम्हारा आका हूं, मैं तुम्हारा मुनज्जी, मैं इसलिए आया ताकि तुम मेरी पहचान कर सको, तुम मुझे पहचान सको कि मैं किस लिए आया। मैं कुछ लोगों को आजाद करने के लिए आया। अपनी मौत के वसीले से मसीह ने इब्लीस का जहरीला ढंग निकाल दिया। अपनी मौत के वसीले से इब्लीस का क्या कर दिया? जहरीला ढंग निकाल दिया। ये स्कॉलर का कहना है। इससे खास जो मकसद हमें मिलता है वो यह है कि मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर उसके तमाम मंसूबों को पामाल कर दिया। इब्लीस के तमाम मंसूबों को क्या कर दिया? पामाल कर दिया। कोई भी ऐसा मंसूबा जो वो बना रहा था, जो उसके ज़हन में था, कोई मंसूबा उसने जो है वो रहने नहीं दिया। इसलिए इब्लीस जो है वो पामाल हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसका दिल करता था कि जमीन फटे और मैं उसमें दाखिल हो जाऊं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो खता खा गया था। उसे खता जो है वो उसे जो है खास तौर पर मंजूर नहीं थी। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को खास तौर पर जो वो धोखा देना चाहता था उसी धोखे में वो खुद गिर गया। मसीह यीशु इसलिए आया कि वो अपने लोगों को आजाद करे। उसने जहरीले ढंग को खत्म कर दिया। मौत का जो ढंग था, जो बागी अदल से शुरू हुआ था, उसने उस दिन जब कलवरी की उस पहाड़ी पर उसने अपनी जान दी तो उसने तमाम मौत के जहरीले ढंग को खत्म कर दिया। उसने बताया कि अब तुम्हें मौत की गुलामी से निकलने की जरूरत है। मैंने तमाम इब्लीस के तमाम जहरीले ढंग को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब तुम आजाद हो और हमेशा के लिए तुम जिंदगी हासिल कर चुके हो और वो कसरत की जिंदगी है। एक आलिम है वो कहते हैं कि शैतान के पास हमारे खिलाफ
کا गलबा हमारे ऊपर था, तो वो गलबा इस चीज पर था कि उसने गुनाह करा करा के अपने तमाम जो मानने वाले हैं उनको अपने कब्जे में किया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसके लोगों ने मसीह को माना, कबूल किया, तो गुनाह की तमाम जंजीरें टूट गई, गुनाह के तमाम बंधन टूट गए, और वो शैतान का गलबा जो था वो हमेशा के तौर पर टूट गया, और यीशु मसीह जो है वो अपने उन तमाम लोगों पर फतह पा गया। उसने अपने लोगों को चुना दिया। और क्या कहता है कि जाते हुए कलवरी के राह पर लोग रो रहे हैं, लोग कुर्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन वो गिरते गिरते कहता है कि देख मैं हर चीज को नया कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? हर चीज को नया कर दूंगा। और उसने किया, उसने हर चीज को नया किया, और लोगों ने देखा कि वाकई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसी कुदरत है कि वो हर चीज को नया कर सकता है। इसलिए आज दुनिया में जिस जगह में आप देख लें, क्रिसमस मनाया ही इसलिए जा रहा है कि वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि उसके काम अजीब है, वो काम ही अजीब करता है। दुनिया के किसी और बंदे ने ऐसे काम नहीं किए जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने। एक आलिम कहते हैं खुदा की तरफ से ये हमारे लिए और हमारी तरफ से दुनिया के लिए ये क्रिसमस का कितना बड़ा तोहफा है। क्रिसमस का हमारे लिए ये कितना बड़ा तोहफा है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए, जो उसने मानने वाले हैं वो इसलिए आए कि अपने मानने वालों को बता सके, उनको बता सके कि मैं भाई किसके लिए आया हूं? तुम्हारे लिए। ये गिफ्ट है क्रिसमस के दिनों में हमारे लिए कि अगर हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो हम उसे कबूल करके इस बात का इकरार कर लें कि बाप हम मानते हैं कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में जो भेजा वो हमारे लिए भेजा, किसी और के लिए नहीं। और दुनिया में जितने मानने वाले हैं वो इस बात का इकरार करें, जीसस मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, मसीह मेरे लिए आया, मुझे आजाद करने के लिए आया। खुदावंद के कलाम के लिए जोर लगाता हूं। हर जुबान पर क्रिसमस के दिन इस बात का इकरार हो कि यीशु मसीह की आया। याद रखिए अजीजों, कलवरी की राह पर जब उसका खून गिर रहा था, उसका खून इस बात की निशानदेही थी, उसका खून जो है वो रास्ते में इस बात की निशानदेही थी कि इसी तरह जिस जगह मेरा लहू गिर रहा है उस जगह की तमाम लोग, मुल्क, कॉलोनियां, दुनिया, एक वक्त आएगा कि इस खून के ऊपर ईमान लाकर जो है वो आजाद हो जाएंगे। ये निशानदेही थी कि जैसे ये खून टपक रहा है ऐसे ही लोग जो हैं वो मसीह पर ईमान लाकर क्या कहेंगे कि हम कुचले हुए थे, हम आजाद हो चुके हैं। हम क्या थे जी? कुचले हुए थे, हम आजाद हो चुके हैं। हमारे लिए क्रिसमस का तोहफा यीशु मसीह है। वो तोहफा इसलिए है क्योंकि दुनिया में आज तक किसी को इतना महंगा तोहफा नहीं मिला। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसे अपना दिल देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हमारी अधूरी जिंदगियों को तूने चीर दिया है, हमारी अधूरी जिंदगियों को तूने नया कर दिया है। आज से हम तेरे ऊपर ईमान लाते हैं कि आज के दिन क्रिसमस हमारा शुरू हो चुका है। तेरी आमद हमारी जिंदगी में हो चुकी है, तेरी आमद हमारी जिंदगी में हो चुकी है। अब हमें किसी महमूद की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी और दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दौलत तू है, हमारा जिंदगी का मियार तो है, हमारे पास हथियार तो है। एक आलिम कहते हैं कि अपनी मौत के वसीले से उसने उसे जैसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दिया। अपने जोर से, खरोच से और अपने पास उसकी काबिलियत की कुदरत थी, उसने उसे मौत
इब्लीस को सफा हस्ती से मटाना नहीं था, बल्कि उसे बेअसर करना था। इसको, उसकी तस्वीरों को, उसके जाम जलाल को, जो वो पूरी दुनिया में छुपाए हुए था, पूरी दुनिया के ऊपर गलबा पाए हुए था, उसके उस जहो जलाल को बवाल करना था और बेअसर करना था। और इसको बेअसर करके मुझे पता चला था कि मैं कल, आज और अब तक जिंदा हूं, और तुम्हारे लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ, अपने फर्जंदों के साथ। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में है। आज इन क्रिसमस की अयाम में हमारे लिए पैगाम है कि हम जान जाए, हम पहचान जाए कि यीशु मसीह जो है उसका दुनिया में आने का मकसद क्या था, वो क्या चाहता था। और अगर वो कुछ चाहता है तो फिर आज हमारे लिए ये पैगाम है कि हम क्या चाहते हैं। हमने कलाम सुना है, आज फिर फैसला करें। अगर आज उसने हमें जो पैगाम दिया है तो आज हम उसके फर्जंद ठहर के फैसला करें और कहें कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। यीशु मसीह किसके लिए आया? मेरे लिए आया, ताकि मैं आज इस दिन से इस बात का इकरार करूं कि क्रिसमस जो है वो मेरे लिए है। क्रिसमस किसके लिए है? मेरे लिए है। क्रिसमस मेरे खानदान के लिए है, मेरे खानदान के लिए, मेरे अजीजों कारब के लिए है। क्रिसमस मेरी शख्सी जिंदगी के लिए है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।